Hello guys, so this is chapter number 2 physics NCERT. Name of the chapter units and measurements. So we have seen all the concepts on this chapter except for two concepts. Okay, one is least count, that is वर्नियर कैलिपर का concept. Least count का concept I have not taught you. ठीक है, and the second concept is a parallax method. Parallax method is a method to find the distances of very large objects. ठीक है, ये दो चीजें मैं तुमको सिखाऊंगा mostly when we meet, so I'll have to be there with you. This least count method का experiment you will have in your practicals, तो इसकी तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ने ही वाली है, so I'll teach you at that time only. Fine. Apart from that, let's quickly glimpse through the chapter, and while going through it, we'll be doing all the solved examples first and then the solutions. Now, एक चीज बता देता हूँ, you will find many solutions on NCERT online. बहुत solutions मिलेंगे, thousands of websites. You just type NCERT solutions, you will get thousands of websites. Every website will have a different solution, completely different solution. कोई सही है, कोई गलत solutions भी है, कोई शॉर्टकट है, कोई बहुत लॉन्ग मेथड्स है, अननेसेसरी लॉन्ग मेथड्स है. वन इज दैट मेथड्स आर डिफरेंट, सॉल्यूशंस आर डिफरेंट, मेथड्स आर रॉन्ग आल्सो, एंड सम सॉल्यूशंस आर वेरी लॉन्ग, सम सॉल्यूशंस आर वेरी शॉर्ट. यस, एंड द थर्ड प्रॉब्लम विल बी you will not understand them. Yes, just by reading it or just by going through the solutions, you will not understand the solutions. So make sure you write down all the solutions with you. These solutions will be helpful for your school and college exams, and of course JEE. Right? This is the smallest chapter probably from the entire syllabus of 2 years. ठीक है, तो कम questions रहेंगे, एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा इस पे काम करना नहीं पड़ता है. Let's begin. Units, measurement, introduction, system of units, EGS, MKS. Okay, this is what I was talking about. ये वाला चीज नहीं सिखाया है, and the parallax method नहीं सिखाया है. Measurement of long distances, या ये क्या हो गया? Measurement of large distances, the parallax method, ये नहीं सिखाया है, don't worry. ठीक है, तो while solving also इसके जो भी questions रहेंगे वो हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ये चीज थोड़ी नहीं सिखाई है, बाकी सब सिखाया. So देखो इस पे 4 examples based है. There are 4 questions based on this. This we will leave for now and आगे बढ़ेंगे. ठीक है, बाकी सब कुछ सिखा दिया है. While going ahead, let's just try a few questions. ठीक है, नोट रखेंगे इसका भी. अरे NCERT से भी शायद कुछ solution समझ में ना आए. Yes, so keep a track of all the solutions. चल, keep your book with you. Yes, while solving, make sure you see the questions, all of them, carefully. चलो अब फिजिक्स समझने के लिए, see, step 1 is concepts, understanding of concepts. Step 2 is practice, and step 3 is exam. फिजिक्स में ऐसा होगा कि कॉन्सेप्ट समझ गया, प्रैक्टिस में सब आ रहा है, सब कर लिया, मैंने जो सिखाया वो सॉल्व कर लिया, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, आएगा ही नहीं सॉल्व करते. यस, उसका एक मेन रीजन है. यस, दिल से नहीं सॉल्व किया, दिल से सॉल्व नहीं किया. यस, मैकेनिकली सॉल्व किया, मैकेनिकली मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग. हाँ, बस ऐसा करना होता है, चिपका दो मेथड. नो, ऐसा घुमा के आएगा ना क्वेश्चन, ऐसा ट्रिक होगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक होने वाला है. अभी 10th के जैसा एग्जाम्स नहीं होगा बोर्ड में भी. चलो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है, दिस ईयर 2020 फिजिक्स बोर्ड पेपर में बच्चे रो दिए. इट वाज टफ इनफ. ओनली द पीपल हु स्टडीड थ्रू आउट द ईयर विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी will be able to clear it properly with good marks. पास तो हो जाएंगे यार, कैसे वैसे रो दो के मर करके, बट स्कोर नहीं कर सकते. एंड इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स टिल डेट, ऐसा बच्चे बोलते हैं. यस, द रीजन इज बच्चे 2 महीने पढ़ाई करते हैं लास्ट के,
है ना, जैसे तुम लोगों ने 10th में की होगी, उससे कुछ नहीं होने वाला हो। एंड कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, रट रुटा के भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो डोंट चीट योरसेल्फ। समझ रहा है तो समझ रहा है बोलो, नहीं समझ रहा है नहीं समझ रहा है, प्रैक्टिस। ओके, लेट्स बिगिन। वापिस ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देम। फाइन, चल एग्जांपल 2.5। इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस is in the range of 10 raised to 15 to 10 raised to minus 14। न्यूक्लियस का साइज है 10 raised to minus 15 मीटर, ठीक है। is scaled up to the tip of a sharp pin, what roughly is the size of the atom? Assume the tip of the pin to be of the range of 10 raised to 5। pin is equal to 10 raised to 5 मीटर। देखो क्या किया, scaled up मतलब see this is the nucleus of an atom, the nucleus of an atom। इसको जूम करो, जूम ऐसे स्क्रीन को कैसे जूम करते हो, मोबाइल स्क्रीन को जूम करते हो ना, इसको ऐसे जूम किया। यस, सी एटम बहुत छोटा है, ये यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, ये दिख बहुत बड़ा रहा है तुमको, लेकिन एक्चुअल न्यूक्लियस तो दिखता भी नहीं है, हाँ कि नहीं। एंड आर यू एबल टू सी द टिप ऑफ अ पिन? यस, टिप ऑफ पिन दिखता है to your naked eye, it is visible। तो तुमने क्या किया, ये न्यूक्लियस लिया, let's say this is the nucleus, इसको जूम किया और जूम करके उसको इस साइज का बना दिया। this is the tip of the pin and this is the nucleus। yes, तो उसको जूम करके बड़ा बना दिया, है ना। see these are general questions, general मतलब you don't have to learn the 11th standard का physics for this, okay। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, इज स्केल्ड अप टू द टिप, स्केल्ड अप मतलब जूम किया, बड़ा किया उसको। यस, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम? देन व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? एटम का साइज कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो जरा, अब स्केल अप किया मतलब क्या किया, मैग्नीफाई, हाँ कि नहीं। What is magnification? 10th standard में पढ़ा है ना सबने, magnification is equal to size of image upon size of object, yes or no? What is the size of image? 10 raised to minus 5, हाँ कि नहीं, इमेज है नहीं, मैग्निफिकेशन करने के बाद जो आया वो इमेज मिला उसका। एंड व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, न्यूक्लियस, 10 raised to minus 10, कितना होगा ये, 10 raised to 10। यस, आईसीएससी वालों ने स्केलिंग फैक्टर पढ़ा है मैथ्स में, यस, ट्रायंगल्स चैप्टर में स्केलिंग फैक्टर, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स में। तो व्हाट इज द स्केलिंग फैक्टर हियर, स्केल फैक्टर, अरे स्केल फैक्टर मतलब बाकी बच्चों के लिए मैग्निफिकेशन कितना है, 10 raised to 10 इज द मैग्निफिकेशन, मतलब इतना बड़ा उसको 10 raised to 10 टाइम्स उसको जब स्केलिंग करते हैं, मतलब 10 raised to 10 टाइम्स स्केल करने के बाद एक इतना सा न्यूक्लियस हमको एक पिन के टिप के बराबर दिखता है, ठीक है क्या। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है और हम करने क्या वाले हैं। यस, द क्वेश्चन इज व्हाट देन इज द साइज ऑफ एन एटम, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। फाइन, द साइज ऑफ एन एटम बच्चों 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, इज given in Armstrong, yes or no? The size of an atom is of the power, 9th standard में सबने जब एटम पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था, the size of an atom is 10 raised to minus 10 meter approximately, yes or no? Correct? तो 10 raised to minus 10 मीटर को अगर मैं 10 raised to 10 के फैक्टर पे मैग्नीफाई करूं, yes, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीफाई दिस बाय 10 raised to 10 का पावर, तो 1 मीटर का हो जाएगा, हाँ कि नहीं। यस, सी ये है, इसको 10 raised to 10 टाइम जूम करो, इंटू 10 raised to 10। जब जूम करते हो तो ऐसे लिख के आता है ना कैमरा पे, मोबाइल फोन पे, इंटू 1x 2x 3x, मतलब मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स, तो मैंने इसको 10 raised to 10 से मल्टीप्लाई किया, हाँ कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 10 raised to 0 which is 1 मीटर, yes or no? Correct? That means an atom of size 10 raised to 10
अगर मैं लेता हूं और उसको 10⁻10 टाइम्स मैग्नीफाई करता हूं तो मुझे 1 मीटर का साइज मिलेगा। करेक्ट है? आई होप तुम ये सारी चीजें नोट कर रहे हो। अब इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक 1 मीटर का इतना बड़ा एटम लेता हूं, अगर मैं 1 मीटर का इतना बड़ा एटम लेता हूं तो उसका जो सेंटर रहेगा उसका साइज इज एज गुड एज द टिप ऑफ अ शार्प पिन। यस, मतलब अगर ये एटम है तो उसका न्यूक्लियस सिर्फ इतना छोटा है। सो उनके क्वेश्चन का मतलब है कंपेयर एन एटम विद द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। यस, इस एटम का अगर मैं 1 मीटर रेडियस लेता हूं ना, 1 मीटर रेडियस का बड़ा सर्कल एक एटम, तो उसका न्यूक्लियस इतना छोटा रहेगा। और ये हमने पढ़ा है ना रुदरफोर्ड्स एक्टिविटी, याद है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उनका उसका कंक्लूजन क्या था? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यस, एंड द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर। 99% ऑफ द एटम इज एम्प्टी। यस और नो? तो यस यार, इतना बड़ा अगर एटम होता, अगर, यस, तो उसमें न्यूक्लियस का साइज होता एज गुड एज अ टिप ऑफ अ पिन। समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये जनरल रैंडम कुछ चीजें कि यार एस्टिमेशन कैसे करते हैं, एस्टिमेट, हाउ डू यू कंपेयर टू थिंग्स, है ना? कितना मैग्नीफाई करके कैसे कंपैरिजन होता है, ये दिखाना चाहते थे वो, बाकी कुछ नहीं, डोंट वरी। यस, इसके लेकिन कंपैरिजन के क्वेश्चंस आएंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, चल अगला सवाल 2.6, सॉल्व एग्जांपल 2.6। Two clocks are being tested against a standard clock located in the national laboratory. दो घड़ी है, एक तुम्हारे पास है, एक मेरे पास है। यस, तुम्हारी घड़ी कुछ तो टाइम दिखा रही होगी, मेरी घड़ी कुछ तो टाइम दिखा रही होगी, लेकिन there is a standard clock, वर्ल्ड टाइम दिखाती है नेशनल लेबोरेटरी में, कहीं तो घड़ी रखी हुई है। At 12 noon by the standard clock, the readings in the two clocks are, this is let's say my clock and this is let's say your clock, है ना? जो स्टैंडर्ड क्लॉक है पूरे कंट्री का नेशनल टाइम दिखाता है, उसमें बजे है 12, जो अभी तुम्हारे चेहरे पे बजे होंगे फिजिक्स देख करके। यस, एग्जैक्टली। मेरी घड़ी में कितने बजे? 12:05 हुए हैं। यस और नो? एंड दूसरी घड़ी में, तुम्हारे घड़ी में बोलता ही कुछ चल रहा है 10:15 और 6। यार दूसरी कंट्री में होगा ना ये। यस, तो टाइम लैग रहेगा इतना। यस, ट्यूसडे का टाइम इतना है, ट्यूसडे को 12, जब यहाँ पे 12 बजते हैं तो यहाँ पे इतने बजे हैं, है ना? वेडनेसडे को जब 12 बजे है नेशनल क्लॉक में, तो मेरी घड़ी में ये टाइम है, तुम्हारे घड़ी में ये टाइम है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ऐसे टाइमिंग दिया है संडे तक का। If you are doing an experiment that requires precision time interval measurements, which of the two clocks would you prefer? Precision time interval measurements मतलब क्या? See, to understand this, forget about entire physics. पूरा physics भूल जाओ, है ना? जो बोल रहा हो वो समझो। Clock 1 से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टाइम कहां पर आ रहा है? देखो तो जरा, 12:01:15, 1 मिनट 50 सेकेंड, दिस इज द बिगेस्ट वैल्यू। 12:01:50। यस और नो? दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11:59:08। यस और नो? दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू 11:59:08। yes, and the biggest is 12:01:50. so what is the range of reading? range याद है? स्टैटिस्टिक्स में रेंज सीखा था, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, हाँ कि नहीं? रेंज इज नथिंग बट, रेंज इज द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू, हाँ कि नहीं? देखो हमारा मीन क्या है? एवरेज 12 से ये कितना आगे है? 1 मिनट 50 सेकेंड, मतलब 110 सेकेंड्स। यस और नो? और ये कितना पीछे है? हाउ मच बिहाइंड इज दिस? 52 सेकेंड्स।
तो प्लस 52 सेकेंड्स। देखो गाइस, ये है 12 से आगे दिस इज प्लस 110 सेकेंड्स, और 12 के पीछे सबसे छोटा वैल्यू है स्मॉलेस्ट माइनस 52 सेकेंड्स पे यहाँ पर, और सबसे बड़ा वैल्यू है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है देखो, तो ऐड करेंगे हम इन दोनों को, यस और नो, है ना। तो 162 सेकेंड्स का डिफरेंस है स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट वैल्यू के अंदर। गेटिंग द पॉइंट। देखो यहाँ पे 12 बज रहे, यस, यहाँ 12:01 और 50 सेकेंड, यहाँ पे हो रहे हैं 11:59 और 8 सेकेंड्स, है ना। इस टाइम के और इस टाइम के बीच में कितना गैप है, 162 सेकेंड्स। यहाँ से 12 बजे तक का 52 और यहाँ से आगे 110 सेकेंड, सो 162 सेकेंड्स का गैप है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज रेंज, है ना। तो इसका रेंज है 162 सेकेंड। इसको सबको हटाएंगे, इसको लिखूंगा रेंज है इसका 162 सेकेंड्स। मतलब 162 सेकेंड्स में आगे पीछे कहीं भी घूम रहा है, कभी ज्यादा बता रहा है, कभी कम बता रहा है 12 से, यस और नो। अब इसको देखो, ठीक है, इसका बिगेस्ट वैल्यू क्या है, बिगेस्ट वैल्यू, तो इसका सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है ये, दिस इज द लार्जेस्ट, 10:15 और 24 सेकेंड। और सबसे छोटा वैल्यू देखो, 10:14 53 सेकेंड्स, 10:14 और 53 सेकेंड्स। हाँ कि नहीं? इन दो टाइमिंग में कितना डिफरेंस है ये बताओ, इन दो टाइमिंग के अंदर कितना डिफरेंस है। सो दिस इज 10:14 53 सेकेंड्स। तो 10:15 बीच में की वैल्यू लेते हैं, है ना, और ये हो गया 10:14 53 सेकेंड्स, और इसके आगे 10:15 24 सेकेंड्स, है ना। सो दिस इज 7 सेकेंड्स हियर, प्लस आगे कितना है 24 सेकेंड्स, तो 24 प्लस 7 इज 31 सेकेंड्स। ठीक है। अरे माना कि ये 12 बजे के आसपास भी नहीं है, 12 बजे के आसपास भी नहीं है, लेकिन इसका वेरिएशन, रेंज छोड़ो, वेरिएशन देखो इसका कितना है, 162 सेकेंड्स का वेरिएशन है, कभी बहुत ही कम, कभी बहुत ही ज्यादा, 152 सेकेंड्स का ओवरऑल वेरिएशन है। इसका ओवरऑल वेरिएशन है सिर्फ 31 सेकेंड्स का, हाँ कि नहीं? ठीक है। तो यार ये जो कंट्री में होगी क्लॉक, उस पे मीन टाइम 10:15 का होगा भाई, यस और नो, लेकिन इसका वेरिएशन देखो कितना है, 31 सेकेंड्स का। समझ में आ रहा है? यस। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, प्रिसिशन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये वाला घड़ी इज मोर प्रिसाइज, यस, प्रिसाइज है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, प्रिसाइज मींस लेस वेरिएशन, एंड दिस क्लॉक इज मोर एक्यूरेट। सी डिफरेंस है, दो अलग अलग चीजें होती है ना, दो अलग चीजें हैं। अगर तुमने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो यू डेफिनेटली नो द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। लेट मी शो इट टू यू, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ठीक है। इन्होंने ना एक एग्जांपल लेकर के दिया होगा कहीं ना कहीं, लेट्स सी। सी, एक द ट्रू वैल्यू ऑफ अ रॉड लेंथ इज 3.678 इज द ट्रू वैल्यू ऑफ समथिंग। एक इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया गया 3.5 और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया गया 3.38, है ना। नाउ दिस वैल्यू इज क्लोजर टू द एक्चुअल रीडिंग, दिस वैल्यू इज क्लोजर टू द एक्चुअल रीडिंग, तो इसको मैं बोलूंगा इट इज मोर एक्यूरेट, हाँ कि नहीं? लेकिन ये बंदे ने एक्यूरेट रीडिंग नहीं लिया, लेकिन बहुत प्रिसाइज रीडिंग लिया, प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि इसका रीडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसका सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक का रीडिंग है। प्रिसाइज समझता है ना, इट हैज टू बी मोर प्रिसाइज, द आंसर हैज टू बी प्रिसाइज। मतलब जितना ज्यादा प्रिसिशन होगा, प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी मींस क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू, प्रिसिशन मींस मोर डेसिमल प्लेसेस, ऐसे समझो। समझ में आ रहा है ना? तो प्रिसिशन इंटरवल पूछा है उन्होंने वहां पे,
ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिए होंगे ना, वो सब क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएंगे, नॉट टू वरी। फाइन। तो उन्होंने बोला है कि प्रिसीशन इंटरवल निकालना है मुझे, है ना। तो अगर एक्यूरेसी भी पूछते तो दिस क्लॉक इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज क्लोज टू द स्टैंडर्ड टाइमिंग, बट दिस क्लॉक इज मोर प्रिसाइज। यस, इट इज मोर प्रिसाइज, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत कम है ना। 31 सेकेंड्स का वेरिएशन है यहाँ पे सिर्फ। यस, और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है यार, है ना। कभी कुछ टाइमिंग दिखाती है, कभी बहुत दूर दिखाती है, कभी बहुत पास में दिखाती है स्टैंडर्ड टाइम से, करेक्ट। तो एवरेज एक्यूरेसी इसकी अच्छी है। यस, एवरेज एक्यूरेसी बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू 12। यस, इसकी एक्यूरेसी भाई आसपास भी नहीं है, बट इसकी जो घड़ी है ना वो बहुत प्रिसाइज है। यस, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, कभी ये कभी वो, कभी इधर कभी उधर, प्रिसाइज। गेटिंग द पॉइंट। फील लो, उस चीज का जितना फील आएगा उतना अच्छे से समझोगे, ठीक है। सो एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू रीड द सॉल्यूशंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। यहाँ देखो यार, थ्योरेटिकल सॉल्यूशन दिया है पूरा, फाइन। अब शायद रीड करोगे तो शायद समझ भी आ जाए। लेट्स गो अहेड। यहाँ एक वर्ड दे रखा है जीरो एरर। जीरो एरर मतलब नो एरर, ठीक है। यहाँ पे जीरो एरर वैल्यू क्या है? यहाँ पे जीरो एरर वैल्यू इज 12, मतलब हमारा कंपैरिजन जिससे हम करते हैं जीरो वैल्यू, जीरो, दिस इज आवर जीरो वैल्यू। देखो नंबर लाइन होता है ना, बीच में है जीरो, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है -4 लेट्स से, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये सुनो, तो हमने 12 को हमारा जीरो बनाया, इसके राइट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में वेरिएशन बताओ कितना है? 9 का वेरिएशन। ऑल वैल्यूज आर बिटवीन दिस -4 से 5 तक, तो 9 का वेरिएशन है, करेक्ट। तो वेरिएशन फाइंड आउट किया हमने। जिसका वेरिएशन कम होगा, देखो ये दूसरा स्केल, ये है 0, ये है -1, ये है +1, इसका वेरिएशन है सिर्फ 2, तो दिस इज मोर प्रिसाइज, इसका प्रिसिशन अच्छा है, प्रिसिशन इज गुड। आई बात समझ? तो दो अलग चीजें होती है, और ये चीज मैं और अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा व्हेन वी लर्न वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ओके, homework question. We measure the period of oscillation of simple pendulum. In successive measurements, the reading are ये T1, T2, T3, T4, T5. Calculate the absolute errors, relative error and percentage error. या absolute मतलब क्या? डेल्टा T, relative मतलब डेल्टा T by T and percentage मतलब डेल्टा T by T into 100. निकालोगे? डेल्टा T निकालो पहले। यस, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज लिख लो। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। 2.7, सो सॉल्यूशन भी है, आंसर चेक कर लेना, कॉपी नहीं करना, नहीं तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा फिजिक्स हो जाता तो तू सह नहीं पाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.9 एग्जांपल। द रेजिस्टेंस R is equal to V by I, where V is 100 plus minus 5, I is this. Find the percentage error. क्या रे, ये तो अभी तुम ऐसे कर लोगे, मतलब you will be like क्या, डेल्टा R upon R is equal to डेल्टा V by V, yes, plus डेल्टा I by I, हाँ कि नहीं? ऐसे ही करोगे ना। So कितना होगा ये? डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू, हाउ मच इज डेल्टा V? 5 अपॉन 100 प्लस I, डेल्टा I कितना है? 0.2 अपॉन 10, सबको इंटू 100 कर दे, तो परसेंटेज R इज 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, 100 से 100 कटा, 10 से 10 कटा, 5 प्लस 2 7%। क्लियर है? देखो यहाँ सॉल्व भी नहीं किया है कुछ भी, सिर्फ आंसर चेक करने का काम करना टेक्स्ट बुक से, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यूज द मेथड ऑलवेज, फाइन। अगला सवाल, टू रेजिस्टर्स ऑफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में अलग से। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड फाइंड
क्या बोला है, बहुत गंदा सा कलर दे रखा है उन्होंने। यस, सो डेल्टा आर अपॉन आर ये फाइंड करना है। सी सिर्फ परसेंटेज एरर निकालो तो आर में, यस, डेल्टा आर बाय आर, परसेंटेज एरर इन आर निकालो, दैट्स इट, है ना। ये इन्होंने स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हमने सीरीज का भी एक सम किया है ऐसा, और पैरेलल का भी सम किया है। सो अगेन दिस वन इज योर होमवर्क, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द रिलेटिव एरर इन दिस। क्या दे रखा है, देखो z इज इक्वल टू, यार ये तो पता है तुमको, अभी बहुत अच्छे से आता है। सी z इज इक्वल टू a रेज टू 4 b रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय c इंटू d रेज टू 3/2, और रिलेटिव बोला है, परसेंटेज नहीं, है ना। मतलब डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 इंटू डेल्टा a बाय a प्लस 1/3 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस 1 इंटू डेल्टा c बाय c रेज टू 1 लिख सकता हूं ना मैं, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा d बाय d इज द रिलेटिव एरर। खत्म, है ना। और कल जो हमने IIT JEE के क्वेश्चंस किए थे उसमें बस इसकी वैल्यू दी थी, नीट के क्वेश्चंस किए थे उसमें इसकी वैल्यू दी थी, काम तमाम, दी एंड। होमवर्क वैसे तो कर लिया, लिख के रखो यार, हर क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख के रखो, बहुत काम में आएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। A period of oscillation of a pendulum is given by this. L is 20, known to 1 mm accuracy. मतलब लेंथ क्या है, L is equal to 20 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो L को लेंगे 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm को सेंटीमीटर में लिखना है। एंड the time for 100 oscillations of the pendulum is 90 seconds, correct. Number of oscillations है 100, total time small t is the total time 90 seconds, correct. wrist watch का resolution है 1 second, है ना, मतलब small delta t is equal to 1 second. what is the acceleration due to gravity? 10 जेई के क्वेश्चंस करवाए ऐसे, 5-6 करवाए ना। यस, जी निकालना है, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी बाई टी को यहाँ पे डेल्टा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी लिख देना, हाँ कि नहीं। देखो 1 अपॉन 90 वही किया है, यस और नो, यहाँ पे चलता है, वो करो तो डन। प्लीज फाइंड आउट, प्लीज सॉल्व करो, जरा खुद से सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेरे भाई प्लीज पढ़ो, रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये सिखा दी है बट तुमको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज समझना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी गाइस, तुम लोग मस्ती में मत लो इसको, ठीक है ना। ये रूल्स सारे, ये रूल्स सारे मैंने सिखा दिए, बट तुमको ढंग से पढ़ के नोट्स बनानी है उसकी। अभी बनाओगे बाद में बहुत फायदा होगा, है ना। राउंडिंग ऑफ वगैरह वगैरह सब सीखा है हमने। यस, एग्जाम्पल गया क्या कोई? एग्जाम्पल नंबर 13, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज दिस मच, सो साइड ऑफ द क्यूब इज 7.203 मीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? यस, टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लीज निकाल लेना यार। देखो उन्होंने निकाला है, ये आंसर आया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तुम लोगों के लिए, ग्रेट। सो दिस इज द आंसर गाइस। ये कैलकुलेशन तो शुरुआत है, अगर तुम अभी से कैलसी यूज करोगे, खुद से चीट करोगे ना, तो आगे रोना पड़ जाएगा। कैलकुलेशंस करना पड़ता है बोर्ड्स में। सी मैं तुमको अप्रोक्सीमेशन सिखाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ सीईटी और जेई में काम में आएगा, बोर्ड में यू हैव टू कैलकुलेट, देयर इज नो ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे यू हैव टू कैलकुलेट। देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस और नो, 1 2 3 4 जो गिवन वैल्यू है उसमें। और हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, 7.203 इंटू 7.203। तो मल्टीप्लीकेशन में यू सी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ कि नहीं।
डेसिमल नहीं देखते, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट। तो हमने लिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 के आगे देखो 999 है, तो मैं उसको 3 लिख दूंगा, 311.3 मीटर स्क्वायर। अगर ये सब नहीं करोगे तो गया, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम तो क्यूब करना है, तो यू हैव नो ऑप्शन, तुमको ये नंबर 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। करो प्रैक्टिस, प्लीज मेरी बात सुनो, ठीक है। तो यहां पे देखो ये आंसर आया 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके आगे देखो लेस देन 5 वाला नंबर है, 1 है, 1 विच इज लेस देन 5, करेक्ट। तो हम इसको 7 पे राउंड ऑफ कर देंगे पीछे वाले पे। सो 3.737 मीटर क्यूब, डन। सो 2.13। नेक्स्ट, this much grams of a substance occupies this much centimeter cube. Express the density keeping the significant figures in view. ठीक है। So density is equal to mass upon volume. Density is equal to mass divided by volume. Yes, 5.54 gram of a substance. So 5.74 sorry. Yes, divided by 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ इसका जो भी आंसर आए, जो भी, कितने डिजिट्स तक आंसर लिखना होगा। डिवीजन है, डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, हाँ कि नहीं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है 1.2, सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आवर आंसर शुड बी अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस और नो। तो ये देखो 4.8, शायद 2 में ही आया होगा आंसर, तो 4.8। तुम लोग इसको डिवाइड करो प्लीज, देखो कितना आंसर आ रहा है ना, 4.8 ही आएगा यार। इसके आगे अगर कुछ आया भी तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 4.8 पे, बिकॉज अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। आई बात समझ। सो 14th एग्जाम्पल, उसके बाद और आगे जाएंगे, परसेंटेज एरर्स वगैरह वगैरह वगैरह, एंड डायमेंशनल एनालिसिस भी बहुत सारा किया है हमने। 15th एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। सो वैसे डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ के कुछ दिन हुए हैं अभी, है ना, रिवीजन। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज द मास, v is its velocity, g is the acceleration due to gravity, h is the height. Check whether the equation is dimensionally correct. तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालो, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालो, यस और नो। तो LHS यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ साइड में, चलो ऊपर लिख देते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, वी हैव सम स्पेस हियर, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। LHS का डायमेंशन, हाफ का तो डायमेंशन लेस है, m का डायमेंशन इज m, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L इंटू टी रेज टू -1, डिस्टेंस का L होता है डायमेंशन, टाइम का T होता है, तो दिस इज द डायमेंशन mLT-1 ऑफ LHS। RHS का डायमेंशन देखो, m फॉर मास, ओके, यस, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यस, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यस। वेलोसिटी का कितना है, मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब लेंथ अपॉन टी रेज टू -2, हाँ कि नहीं। और हाइट, हाइट मतलब लेंथ, करेक्ट है। सो m l स्क्वायर t स्क्वायर, ये t ऊपर चला जाएगा, ये l स्क्वायर। LHS is not equal to RHS, hence the formula is not correct. Yes? अरे सेम आया, मैंने गलत किया गया है कुछ। ओह, हाफ m v स्क्वायर है, सॉरी गाइस, माय बैड, आई मिस्ड स्क्वायरिंग। अरे स्क्वायरिंग नहीं किया ना भाई, हाफ m v का स्क्वायर है ना, सो ये है मास का, यस, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे उसका स्क्वायर है, सो m l स्क्वायर t रेज टू -2, mgh, m मास,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर इनटू लेंथ, सो m l स्क्वायर t रेज टू -2. ओके, डायमेंशनली करेक्ट. यस, सो करेक्ट है. सॉरी अबाउट द मिस्टेक, स्क्वायरिंग भूल गया था. 16th क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज दिस. ठीक है, दे रखा है. दैट ऑफ स्पीड इज दिस, एक्सेलरेशन इज दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन इन हैव इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट है ना. तो देखो LHS में K है, K का डायमेंशन क्या होगा, kg मतलब m, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, सो t रेज टू -2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ LHS. करेक्ट. अब पहला वाला उठाओ, RHS का डायमेंशन देखो क्या है, m स्क्वायर v का क्यूब है ना. v इज मीटर पर सेकेंड का क्यूब. यस, तो लेंथ का क्यूब टाइम रेज टू -3. मैच हो रहा है क्या, नहीं. सो पहला वाला इनकरेक्ट है ना. बोथ साइड्स में डायमेंशन सेम होना चाहिए. ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे चेक करो एंड सी की कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है. मल्टीपल भी करेक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज योर होमवर्क. प्लीज डायमेंशनल एनालिसिस रिवाइज करते रहो. ठीक है. 17th क्वेश्चन, वापस सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन हो गया. कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू इट, अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, oscillates under the action of force of gravity. ठीक है. Suppose the period of oscillation of the simple pendulum depends on length, mass and acceleration due to gravity. Derive the expression for time period. ये हमने ऑलरेडी किया है. Yes, just as a part of revision. Time period is proportional to mass raised to x. क्या बोले, length, mass of the bob, length raised to y and acceleration due to gravity raised to z. yes, proportionality का साइन हटाएंगे और k डालेंगे यहाँ पे. m raised to x, l raised to y, g raised to z है ना. चलो, टाइम. what are the dimensions of time? seconds मतलब t raised to 1 is equal to k into m raised to x, लेंथ का L होता है, L रेज टू y एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर रेज टू z. ऐसे करते हैं हम. तो इसका डायमेंशन देखो क्या हो गया, m0, l0, t1, हाँ कि नहीं. k इंटू k का डायमेंशन तो 0 है तो k इज डायमेंशनलेस, यहाँ से हट जाएगा. k इज डायमेंशनलेस. m रेज टू x, l रेज टू y प्लस z, ये देखो यहाँ y है यहाँ z है, और t रेज टू -2z, ये t रेज टू -2 ऊपर जाएगा रेज टू z, हाँ कि नहीं. चलो परफेक्ट. तो ये x m का पावर 0, m का पावर x, तो x इज इक्वल टू 0, l का पावर 0 और इसका पावर y प्लस z, सो y प्लस z इज इक्वल टू 0 और t का पावर 1, सो -2z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1/2. अब z इज इक्वल टू -1/2 इस इक्वेशन में डालो तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/2, कि नहीं. तो आ गया हमारा फॉर्मूला, t इज इक्वल टू k इंटू m रेज टू 0, यस, लेंथ, मास रेज टू 0, लेंथ रेज टू हाफ एंड g रेज टू -हाफ, g रेज टू -हाफ. रेज टू हाफ मतलब बच्चों अंडर रूट k, m रेज टू 0 इज 1 अंडर रूट l बाई g, ये g नीचे आ जाएगा ना, -हाफ है तो. यस, तो आ गया हमारा फॉर्मूला t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई g, और ये हम कल से कितनी बार यूज कर चुके हैं. यस, क्लियर है, ये पहले भी हमने डिराइव किया है ना. तो आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट बुक्स, ठीक है ना. t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई g, ठीक है. अब देखो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया,
बट द एक्चुअल फॉर्मूला इज दिस 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो एक्चुअली ये जो k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई। यस, एंड दिस वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। समझ में आया? ये थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस का डिसएडवांटेज होता है। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ता है या देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, कंप्लीटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। क्लियर है? एंड दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमने किए आज, स्टार्टिंग के 4 छोड़ दिए है ना, मतलब 13 सॉल्व्ड एग्जांपल्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। हर एक्सरसाइज बड़ी रहेगी। इसमें कितने हैं? 33 क्वेश्चंस है, बहुत कम है। 40, 45, 50 भी क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर में। एंड बच्चों थोड़ा ट्रस्ट करना सीखो, मैं जो बोल रहा हूँ और फॉलो करना सीखो, ठीक है? बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम समझो बात को। डायरेक्ट यहां से जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है सिर्फ वैल्यूज चेंज करके। दिस बुक इज रिटन बाय एटलीस्ट 10 एक्सपर्ट्स। 10 एकदम ऑल ओवर इंडिया के जो 10 बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने ये बुक बनाई है। ये 10th स्टैंडर्ड के घटिया सीबीएसई बुक की तरह नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत कड़क है। यस, जेईई इसीलिए बोलते हैं कि जेईई में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, या इससे इजी होंगे, इससे टफ बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कम रहेंगे, टफ भी रहते हैं, कम रहते हैं, सुपर क्वेश्चंस होते हैं। और एक बात पे ट्रस्ट करो, जो एग्जाम्पलर है ना तुम्हारा फिजिक्स का, वहां से तो एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, जेईई एडवांस में। यार कोई टीचर कुछ भी बोले, यस दिस इज द फैक्ट, उठा के देख लो बुक्स पिछले, है ना? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं पूरा यहां से आएगा। इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, करेक्ट? तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स है एकदम मस्त कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट मेंस में। एडवांस थोड़ा सा टफ होता है, नो डाउट, ठीक है? तो बहुत अच्छे से करो इसको, बहुत अच्छे से, ठीक है? सो एक्सरसाइजेस, चल लेट्स बिगिन। आई डोंट थिंक होगा, आई वांटेड टू मेक अ ह्यूज सेशन, बट पूरा टेक्स्ट बुक का, बट बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। सी गाइस, मैं थोड़ा स्लो सिखाता हूँ, है ना? स्लो सिखाएंगे, आराम से, स्लो स्टेडी, एंड पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ बेसिक से एडवांस तक सब सिखाऊंगा। यस, एकदम टॉप लेवल की बुक्स भी करवाऊंगा जितने रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है? चलो 1-2 क्वेश्चंस तो करते हैं, लेट्स बिगिन। इन द स्टेटिंग न्यूमेरिकल आंसर्स, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, प्लीज बुक्स लेके बैठा यार अपने पास, अपने हाँ। इन स्टेटिंग न्यूमेरिकल आंसर्स टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? ये बच्चों वाले क्वेश्चन है 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यस, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, है ना? तो 1 का क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, ठीक है? लेकिन उन्होंने बोला है मीटर क्यूब में बताओ, सो व्हाट इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब? Convert it into meter cube। 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to -2 मीटर, तो ये सेंटीमीटर के जगह 10 raised to -2 मीटर डालो। 1 into 10 raised to -2 raised to 3, so 10 raised to -6 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 10 raised to -6 मीटर क्यूब। यस, हाँ कि नहीं? अब मल्टीप्लीकेशन है ना? तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया? बेसिकली 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर इंटू 0.01 मीटर इंटू 0.01 मीटर, हाँ कि नहीं? यस, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ एक। पहले के सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, सो देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका आंसर में 10 raised to -6 लिखूं क्या? नहीं, गलत होगा। 1 into 10 raised to -6, देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, सो 1 into 10 raised to -6 मीटर क्यूब, ऐसे लिखना पड़ेगा। आई बात समझ? सिग्निफिकेंट फिगर समझो, बाकी तो बकवास है।
द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश mm स्क्वायर। तो mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सबको। 2 सेंटीमीटर इज 20 mm, हाँ कि नहीं, और 10 सेंटीमीटर इज 100 mm, करेक्ट। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, अब ये पता होना चाहिए भाई तुमको, 2 pi r into r plus h, यस और नो, टोटल सरफेस एरिया 2 pi r into r plus h। यार कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, हाँ कि नहीं। सो जस्ट कैलकुलेट, प्लीज पुट द वैल्यूज, सॉल्व करो एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर निकालो। आई विल बी सेंडिंग यू सॉल्यूशंस टू दिस फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आई गिव यू होमवर्क। वैसे तो मुश्किल से होमवर्क दूंगा मैं एनसीईआरटी में कुछ भी, ठीक है, ये ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस दे दूंगा, इसका आंसर तुम ऑनलाइन चेक कर लेना प्लीज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस टाइप करके इसका आंसर चेक कर लेना प्लीज, ठीक है, वैल्यूज डाल के। नेक्स्ट चेक करो, हाँ, नहीं तो तुमको समझेगा भी नहीं कि कहाँ गलती हो रही है। अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस मच कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, इंटू 5/18, इससे ये कटा 5 मीटर पर सेकेंड, सो इट कवर्स 5 मीटर्स इन 1 सेकेंड, यस और नो। तो यहाँ पे बेसिकली हमने मल्टीप्लीकेशन किया कुछ तो, यस। हियर यू हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो 18, 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5.0 मीटर पर सेकेंड। आई क्या बात समझ, यस। सो दैट इज द सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। यार अब ये सब बच्चों वाले बचपन के फॉर्मूले तुम्हारे। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। 9th क्लास में पढ़ा है सबने, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 11.3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज दिस, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ लेड आएगा, डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 ले लो क्या, 1 लो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये पता होना चाहिए यार, है ना, ये बेसिक्स है, 8, 9, 10 का बेसिक्स है। तो डेंसिटी ऑफ लेड कितना हो जाएगा, 11.3 इंटू 1 विच इज 11.3। क्लियर है क्या, है ना। सो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ लेड, ठीक है। अब केजी पर मीटर क्यूब में उसको कन्वर्ट करने बोला है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा है, तो उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ग्राम को मैं लिख दूं 10⁻³ kg, सॉरी 10⁻³ kg, यस। और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, सो 10⁻² का क्यूब। सो 11.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻6, हाँ कि नहीं, परफेक्ट। ये ऊपर जाके होगा 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और परफेक्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो 11.3 इंटू 10⁻³, या यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1.13 इंटू 10⁻⁴, तो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर करता है, ना कि नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो 1.13 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आगे से याद रखो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से kg पर मीटर क्यूब में है, तो सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर, है ना। सपोज आई हैव 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बोला है कन्वर्ट इनटू केजी पर मीटर क्यूब, सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करो, 5000 kg पर मीटर क्यूब, खत्म, ऐसे, फाइन। और अगर केजी पर मीटर क्यूब में दिया है तो 1000 से डिवाइड करो, खत्म।